Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. Hello my dear students, my name is Sachin Jadhav, founder Fundamental Pharmacy, author of Fundamentals of GPAT NIPER DI Pharmacist Volume 1, GPAT Cracker Achieve MCQ book and few other books. Welcomes you in this YouTube video session. My dear students, we have seen in the previous video Group 5 Government Pharmacist exam paper, which is recently conducted by Madhya Pradesh government, that is the Employee Selection Board of Madhya Pradesh. So this exam was conducted on 25th of July 2023, shift 2. We have already seen 51 MCQs and I have explained you those MCQs from this paper. So in today's session we are going to see few other questions from this paper. So as I told you, your pharmacist exam paper will have two portions. First portion is nothing but the technical part, in which you are going to have questions from pharmacy background, and another part is nothing but the non-technical part. Non-technical part, you will have questions from general knowledge, English grammar and Hindi grammar. Okay, for other state and for Maharashtra state, in the non-technical part you will have questions from Marathi grammar, okay, English grammar, reasoning and aptitude. Non-technical part. So technical part is around, in this paper technical part is around 70% and non-technical part is around 25%, but in other papers it may be around 40-60 or 60-40 also, 60%. So we have already seen 51 MCQs from this paper, so I'm not going to, so I will directly move to the 52 question. Okay, so we have seen 51 questions in the last session. So last question was this, it was nothing but the which of the following is not a drug with a केमिकल कांस्टेंट अल्कोलॉइड. तो पूछा है अल्कोलॉइड किस में नहीं है, किस में अल्कोलॉइड नहीं है. देखो ऑप्शन में दिया है सेन्ना, ऑप्शन में दिया है धतुरा, वसाका एंड विंका. तो धतुरा, वसाका एंड विंका ये जो तीन क्रूड ड्रग्स है इसमें क्या है, अल्कोलॉइड्स नहीं, राइट. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. सेन्ना में क्या है, अल्कोलॉइड्स नहीं है. ठीक है, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो देख लेते हैं नया क्वेश्चन. Before that, if you are new on our channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you will never miss any single video from my side. चलो देख लेते हैं नया क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following is not intentional adulteration method? क्या पूछा है, which of the following is not intentional adulteration method. Adulteration method बहुत सारे टाइप का होता है. Okay, so basically they are classified into two type. First adulteration method is known as a intentional adulteration method and second one is a non intentional. ठीक है, एक जानबूझ के अडल्ट्रेशन करना है और एक मतलब बिना जाने अडल्ट्रेशन हो गया है. सो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मेथड कौन सा होता है. सो इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी. ठीक है, दो क्रूड ड्रग का दो वैरायटी है. ठीक है, ग्लिसरेला, ग्लिसराइजा ग्लैपरा एक है, ग्लिसराइजा दूसरा भी एक है. ठीक है, दो एक ही ड्रग का दो वैरायटीज है. ठीक है, जैसे अलेक्जेंड्रियन सेन्ना एंड ओके, अलेक्जेंड्रियन सेन्ना होता है आपका, आपका दूसरा एक सेन्ना होता है नॉर्मल सेन्ना. तो दोनों भी क्या है, सेन्ना है बट वैरायटी अलग है. सो सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी मींस व्हाट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑथेंटिक ड्रग बाय यूजिंग अनदर ड्रग which is having less chemical quantity, that is known as a substitution by using inferior commercial variety. So it comes under the intentional adulteration method. Again option B दिया है substitution by using exhausted drug. So substitution by using exhausted drug मतलब क्या, substitution of drug from which active constituent has been removed by extraction or by using another method. Okay, so this substitution using exhausted drug also comes under the intentional method of adulteration. तो intentional में ये दोनों भी आता है. Now option D में दिया है आपका adulteration by using manufactured substances. तो मतलब artificially manufactured substance है. For example, honey is adulterated with the invert sugar, so that is adulterated by using manufactured substance. So it is also intentional adulteration method. मैंने पहले ही बोला आपको, there are two adulteration method. First one is the intentional adulteration method and second one is nothing but the नॉन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मेथड. दो मेथड है अडल्ट्रेशन का, बट व्हाई यू नीड टू डू अडल्ट्रेशन. लोग अडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द प्रॉफिट, टू इंक्रीज द प्रॉफिट दे यूज टू अडल्ट्रेट द क्रूड ड्रग्स. ओके, सो इंटेंशनल में क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इंफीरियर कमर्शियल वैरायटी. इंटेंशनल में क्या आता है, इंटेंशनल अडल्ट्रेशन मेथड में सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एक्सॉस्टेड ड्रग, राइट.
इंटेंशनल में क्या आता है? अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंसेस, राइट? सो ये तीनों भी आता है इंटेंशनल में। अब बचा कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूशन बाय सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। तो अडल्ट्रेशन इंटेंशनली कैसे कर सकते हो आप? तो इंपीरियल कमर्शियल वैरायटी का अगर है ड्रग, या फिर एग्जॉस्टेड ड्रग है, या फिर कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, तो वो इंटेंशनली आप उसमें डालोगे टू इंक्रीज द प्रॉफिट, राइट? बट अगर दोनों ड्रग है जो सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में, if two drugs are similar in the morphology and you cannot easily discriminate that two drug, so there are the chances, by chance it may be get adulterated. So it is a non-intentional method of adulteration. So remember, non-intentional method of adulteration is nothing but the substitution by similarly looking drug. Answer for this question क्या है? क्वेश्चन क्या है? देखो, which of the following is not an intentional adulteration method? So substitution by similarly in morphology. Substitution of drug which are similar in morphology is not a intentional. Similar morphology तो accidentally भी आपको adulterate हो सकता है, right? So that is the answer. Now we'll see the next question. चलो देखते हैं नया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देख, so which of the following is a primary, which of the following is a primary unit of weight, unit of क्या? Weight in the Avoirdupois system. Which of the following is a primary unit weight in the Avoirdupois system of weight measurement? तो इसमें for measurement of weight you might have seen there are different methods which are given in the dispensing pharmacy. So Avoirdupois method is there, Avogadro's method is there, metric system is there. So in the Avoirdupois system the basic unit of weight is nothing but the ounce. So option में दिया है ounce, gram, pound and kilogram. In Avoirdupois system, unit of weight in the Avoirdupois system is nothing but the ounce. Remember 16 ounce. 16 ounce is equal to 1 pound. 16 ounce is equal to 1 pound जो होता है ना वो 16 ounce होता है. 16 ounce 16 ounce is equal to 1 pound. Now ounce as well as pound both are used in the Avoirdupois system. Ounce is the basic unit. Ounce क्या है? Basic unit. तो याद रखना है ounce क्या है? Basic unit. Ounce is nothing but the basic unit. And this gram and kilogram, they are the unit for metric system. They are the unit for metric system. याद रखो. Ounce, pound ये जो है these are the units of Avoirdupois system. और जो Avogadro system होता है उसमें होता है grains. So the unit of Avogadro system is nothing but the grains. Okay, in Avoirdupois system ounce is the basic unit of weight. In metric system grams is the basic unit of weight, and in the Avogadro system that is the grains are the basic unit of weight. ठीक है, clear? Now we'll see the next question. चलो देख लेते हैं next question. Next question में देखा है, देखो पूछा है, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 पूछा है द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ इश्केमिक हार्ट डिसीज. क्या है? लिस्ट ऑफ इश्केमिक हार्ट डिसीज रिस्क फैक्टर. सो यहाँ पे जो दिए हैं उन्होंने ये चार, ये क्या है? इश्केमिक हार्ट डिसीज रिस्क फैक्टर. देखो पूछा क्या है? विच वेयर एंजियोटेंसिन सेकंड प्लेस इंपॉर्टेंट रोल. तो इसमें के जो रिस्क फैक्टर दिए हैं उन्होंने चार, उसमें एंजियोटेंसिन सेकंड कहाँ पे रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल कहाँ पे प्ले करता है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले. देखो ऑप्शन ए में दिया है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ऑप्शन बी में दिया है हाइपरकोलेस्टेरोमिया, ऑप्शन सी में दिया है कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, ऑप्शन डी में दिया है कार्डियक अरिथमिया. तो देखो क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन समझ लो. ओके, सो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इश्केमिक हार्ट डिसीज रिस्क फैक्टर. ये क्या है? इश्केमिक हार्ट डिसीज के लिए रिस्क फैक्टर है, सभी रिस्क फैक्टर है. ठीक है, बोला गया है कि सभी रिस्क फैक्टर है, लेकिन उसमें का ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसमें एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है? कौन सा फैक्टर है इसमें का? इसका आंसर है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एग्जैक्टली क्या होता है वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी? सो देयर इज ए इंक्रीज इन द साइज ऑफ वेंट्रिकल्स. देयर इज ए इंक्रीज इन द साइज ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ योर हार्ट. इंक्रीज इन द साइज ऑफ वेंट्रिकल्स कैसे होता है इंक्रीज इन द साइज? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन. ओके, जहाँ पे ज्यादा हाइपरटेंशन है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर जहाँ पे हो रहा है, तो इन दैट केस आपका वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगा. वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन
heart. So what will happen if heart is not able to pump the sufficient blood? ठीक है, तो क्या होगा कि हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाएगा. लोड बढ़ने के कारण क्या है, किडनी में ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. किडनी में ब्लड प्रेशर कम हो गया तो वहाँ पे एंजियोटेंसिन 1, ओके, वहाँ पे एंजियोटेंसिनोजेन जो इनएक्टिव ग्लाइकोपेप्टाइड होता है एंजियोटेंसिनोजेन, देखो यहाँ पे मैं टक करता हूँ एंजियोटेंसिनोजेन. सो इट इज इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन, इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन. किडनी में जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है, इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजेन is converted into angiotensin 1. Angiotensin, what is angiotensin 1? By the enzyme known as a renin. यहाँ पे एक एंजाइम होता है renin, so that will convert inactive glycopeptide which is known as a angiotensinogen. It is converted to angiotensin 1. It is a angiotensin 1 is a it is a decapeptide. It is a decapeptide. यहाँ पे मैं D लिखता हूँ, decapeptide. Then angiotensin 1 is converted into angiotensin second. Angiotensin second. Angiotensin second. So by the enzyme known as ACE, ACE, ACE मतलब angiotensin converting enzyme. By the enzyme ACE, by the enzyme ACE, angiotensin converting enzyme. Now this angiotensin second is a potent vasoconstrictor. ये क्या होता है, vasoconstrictor होता है. It is a vasoconstrictor and it increases the peripheral resistance. ये प्रेशर बढ़ाता है हार्ट के ऊपर. एंड उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रीलोड है ना वो प्रीलोड बढ़ता है. प्रीलोड बढ़ गया तो वेंट्रिकल्स में ज़्यादा ब्लड आता है. वेंट्रिकल्स में ज़्यादा ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल क्या होते हैं, डायलेट हो जाते हैं. डायलेट हो गया तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. सो क्वेश्चन समझ लो, आपको आंसर समझ में आएगा. सो विच ऑफ द फॉलोइंग, okay, the following list of ischemic heart disease risk factor where angiotensin second plays important significant role. So what is that? Ventricular hypertrophy. Hypercholesterolemia मतलब क्या है, increased blood cholesterol. Hypercholesterolemia मतलब increased blood cholesterol. ठीक है, hypercholesterolemia. ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लो क्या है. सो hypercholesterolemia means increased cholesterol level, तो इसका कोई ये नहीं है, मतलब रिलेवेंस नहीं है. कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस, इसका भी कोई रिलेवेंस नहीं. कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस का कोई संबंध नहीं. कार्डियक अरिथमिया, इसका भी थोड़ा बहुत संबंध है. ओके, लेकिन वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी दैट इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द एंजियोटेंसिन सेकंड व्हिच प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल इन द वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी. और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन एन एथलेट फुट इज. तो एथलेट फुट नाम का एक इन्फेक्शन होता है. व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन एथलेट फुट इज. सो ऑप्शन ए में दिया है पैरासाइटिक, ऑप्शन बी में दिया है वायरल, ऑप्शन सी बैक्टीरियल और ऑप्शन डी में दिया है फंगल. सो एथलेट फुट्स जो होता है इन्फेक्शन, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन. एथलेट फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन. रिमेंबर, एथलेट फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन caused by fungus. Variety of fungus they causes the athlete foots. Trichophyton, particularly Trichophyton नाम का जो फंगस होता है वो क्या करेगा, एथलेट फुट्स करेगा. So this is the fungal disease. और फंगल इन्फेक्शन, एथलेट्स फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन. याद रखना है आपको, एथलेट फुट इज अ फंगल इन्फेक्शन. ये आपको बहुत सारे फार्माकोलॉजी के बुक में भी आएगा एंड यू माइट हैव सीन दिस इन अ कम्युनिटी फार्मेसी. फंगल डिसीज. सो एथलेट फुट इज अ फंगल डिसीज, रिमेंबर. चलिए देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द कन्वर्जन ऑफ किसका, डेसीग्राम टू ग्राम. कन्वर्जन ऑफ डेसीग्राम टू ग्राम. ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले. ऑप्शन ए में दिया है 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम. ऑप्शन बी में दिया है 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.001 ग्राम. ऑप्शन सी में दिया है 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम. एंड ऑप्शन डी में दिया है 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 0.1 ग्राम. तो आपको यहाँ पे याद रखना है 10, यहाँ पे क्या होता है 10 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम. ये आपका 1 ग्राम, 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, ये मालूम होना चाहिए आपको. 10 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड नाउ 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम डिवाइड बाय 10 दैट इज 0.1 ग्राम. ओके, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर डी. क्यों, क्योंकि 10 डेसीग्राम जो होता है वो 1 ग्राम होता है. 10 डेसीग्राम जो 1 ग्राम होता है, 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम कितना होगा, 0.1 ग्राम. सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा. और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. पूछा है, देखो पूछा है क्वेश्चन नंबर 57.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो गलत पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन अगर प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे तो 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पहले क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। जो आईज में जो प्रिपरेशन यूज करते हैं उसमें उसके रिगार्डिंग जो नीचे सेंटेंस दिए है, स्टेटमेंट दिए है, उसमें का गलत कौन सा है, उसमें का गलत कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। देखो ऑप्शन ए में दिया है प्रिजर्वेटिव आर मस्ट इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आई सर्जरी। आपके आंखों का ऑपरेशन करना है तो उसमें जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स उसमें यूज करेंगे उसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव ऐड ही करना है। प्रिजर्वेटिव्स आर मस्ट इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आई सर्जरी। ऑप्शन बी में क्या दिया है, देखो प्रिजर्वेटिव आर नॉट यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट फॉर यूज्ड फॉर द सर्जरी। सर्जरी के लिए जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज करने हैं उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं ऐड किया जाता। प्रिजर्वेटिव आर नॉट यूज्ड इन द प्रोडक्ट यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक सर्जरी, राइट। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आईसीजी। ऑप्शन सी में दिया है प्रिजर्वेटिव आर इंक्लूडेड इन द मल्टीपल आई डोज सॉल्यूशन। ऑप्शन डी में दिया है प्रिजर्वेटिव आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनिट डोज पैकेज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पूरा। बोला क्या है, पूछा क्या है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। तो सर्जरी के लिए जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स लगते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। ये सर्जरी के लिए ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कौन सा लगेगा, सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट लगेगा ये, तो इसमें ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट नहीं, इसमें ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज फॉर सर्जरी शुड नॉट विल नॉट कंटेन प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव इसमें नहीं होता है, ठीक है। सो ऑप्शन ए में प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव आर मस्ट ऐसा लिखा है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट मस्ट इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आईसीजी। ऑप्शन बी में दिखा है प्रिजर्वेटिव आर नॉट यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट, ये तो स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। प्रिजर्वेटिव आर नॉट यूज्ड इन द ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आई सर्जरी। आईज का ऑपरेशन होता है उसमें जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज करते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, ऐसा बोला है तो सही बात है ना। ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो है जो सर्जरी में यूज करेंगे उनको प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्टरलाइज होते हैं। ऑप्शन सी में दिया है प्रिजर्वेटिव आर इंक्लूडेड इन द मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है, क्योंकि आई ड्रॉप्स जो होते हैं आपके, आई ड्रॉप्स में क्या होता है, प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव आर इंक्लूडेड इन द मल्टीपल डोज आई सॉल्यूशन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या दिया है, प्रिजर्वेटिव आर नॉट इंक्लूडेड इन द यूनिट डोज पैकेज, ये भी करेक्ट है। अगर सिंगल डोज मतलब यूनिट डोज पैकेज है उसमें प्रिजर्वेटिव का जरूरत नहीं, वो सिर्फ स्टरलाइज करके टर्मिनली स्टरलाइज प्रिपरेशन होता है वो, सो नो यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है, सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So this statement, preservative are must in the ophthalmic product used for surgery. This statement is a wrong. ये wrong statement, ठीक है। Now second statement जो है, preservative are not used in the ophthalmic product used for eye surgery. ये क्या है, correct statement है। Preservative are included in the multiple eye dose solution. ये भी क्या है, correct statement है। लास्ट वाला जो है ना, preservative are not included in the unit dose package. Preservative are not included इन द यूनिट डोज पैकेज, ये भी क्या है, करेक्ट है। सो रॉन्ग कौन सा है, फर्स्ट। सो आंसर क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट। आंसर इज नथिंग बट द दिस, ऑप्शन ए इज द आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स ड्यूरिंग द ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। प्रिजर्वेटिव आर मस्ट बी इन ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज्ड फॉर आई सर्जरी, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देख लेते हैं नया क्वेश्चन क्या है। देखो पूछा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग eye condition, for the treatment of following eye condition, ophthalmic insert, okay, ophthalmic insert lacrizert, ophthalmic insert lacrizert is used। तो पूछा है lacrizert नाम का जो ophthalmic insert होता है, सो वो किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आई कंडीशन। नीचे दिए गए से कंडीशन जो दिए, ड्राई आइज, वाटरी आइज, कंडक्टिविटीज एंड रेडिश आइज, ये जो कंडीशन है इसमें लैक्रिजर्ट किस में यूज करेंगे, इनमें से। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आई कंडीशन ऑप्थेल्मिक इंसर्ट लैक्रिजर्ट इज यूज्ड। सो ऑप्शन ए में दिया है ड्राई आइज, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है वाटरी आइज, ऑप्शन सी में दिया है कंडक्टिविटीज, ऑप्शन डी में दिया है रेडिश आइज।
ठीक है। तो आपके आइज की कंडीशन कितने, ये तीन है, ड्राई आइज, वाटरी आइज एंड रेडिश आइज, ये तो नहीं है कंडीशन ये। लैक्रिजर्ट में क्या होता है, लैक्रिजर्ट कंस्ट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी सेल्यूलोज, पॉलीहाइड्रोक्सी सेल्यूलोज, इसमें क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी cellulose PHC. So lacquer consists of polyhydroxy cellulose. So what is the role of this cellulose, polyhydroxy microcrystalline cellulose? So it is used as a lubricant. It is used for the lubrication of eyes. Eyes में lubrication का काम करता है ये। अभी देखो lubrication किस में लगता है आपको, वाटर आइज में लगेगा। वाटर आइज में कैसे लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर है उसमें, lubricant का जरूरत नहीं। रेडिश आई का मतलब ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। ड्राई आइज मतलब क्या है, जब ड्राई आइज होता है आपका उस टाइम पे वाटर नहीं होता है या फिर लैक्रिमल फ्लूइड कम आता है। सो इन दैट कंडीशन ड्राई आइज जब होते हैं तो आपको लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। सो इन केस ऑफ ड्राई आइज यू हैव टू यूज दिस सेलुलोज, पॉलीहाइड्रोक्सी सेलुलोज व्हिच इज प्रेजेंट इन द लैक्रिजर्ट। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। रिमेंबर ओवर हियर दिस लैक्रिजर्ट इज यूज्ड इन द ड्राई आइज। लैक्रिजर्ट किसको यूज करते हैं, ड्राई आइज को। लैक्रिजर्ट किसमें यूज करते हैं, ड्राई आइज में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखो पूछा है, which of the following drug is an antagonist to the diazepam? Which of the following drug is an antagonist to the diazepam? डायजेपम का एंटागोनिस्ट कौन है पूछा, ठीक है। चलो ऑप्शन ए क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है प्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन बी दिया है फ्लुमाजेनिल, ऑप्शन सी दिया है डोमपेरिडोन, ऑप्शन डी दिया है फेनर्गन। डायजेपम का एंटागोनिस्ट कौन है, या फिर यही क्वेश्चन अगर अलग तरीके से पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर डायजेपम पॉइजनिंग। सो एक ही क्वेश्चन दो तीन बार से दो तीन तरीके से पूछ सकते हो। सो एंटागोनिस्ट ऑफ डायजेपम और एंटागोनिस्ट टू द बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर, या फिर आपको पूछेंगे डायजेपम का एंटीडोट क्या है। सो यही क्वेश्चन तीन तरीके से पूछ सकते हो, कितने तरीके से, तीन तरीके से। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर बेंजोडाइजिपिन पॉइजनिंग, और व्हाट इज द व्हाट नेम द ड्रग व्हिच इज अ बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या फिर सरल सीधा पूछा है अपना, व्हाट इज ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग इज अ एंटागोनिस्ट टू द बेंजोडाइजिपिन और डायजेपम। तो डायजेपम क्या है, इट इज सेडेटिव हिप्नोटिक एंटी कन्वर्जेंट ड्रग, राइट। तो इसका एंटागोनिस्ट होता है फ्लुमाजेनिल, इसका एंटागोनिस्ट होता है फ्लुमाजेनिल। फ्लुमाजेनिल इज द एंटागोनिस्ट फॉर बेंजोडाइजिपिन, और it is the antidote for benzodiazepine, or it is the antagonist to the benzodiazepine receptor, it is the antagonist to the diazepam receptor. Now bromocriptine क्या है, bromocriptine, so it is nothing but the dopamine receptor agonist, क्या है, dopamine receptor agonist. then domperidone क्या है, it is a 5-HT3 receptor blocker, ये domperidone क्या है, 5-HT3 receptor blocker है, as well as dopamine receptor blocker, it is used as an anti-emetic. फेनर्गन क्या है, फेनर्गन, फेनर्गन इज नॉट ए ड्रग, इज नॉट अ ड्रग, इट इज अ ब्रांड नेम। फेनर्गन क्या है, ब्रांड नेम, इसका ब्रांड नेम है, ए ब्रांड नेम है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का। फेनर्गन इट इज अ ब्रांड नेम फॉर एंटी हिस्टामिनिक, इसमें आपको क्लोरोफेनारामाइन वगैरह होते हैं, एविल वगैरह वगैरह। देन नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, देखो इसमें क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए फिर आपका, द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 59 दैट इज which of the following is the antagonist to the diazepam. The correct answer is nothing but the option B, that is a flumazenil. Option B, that is a flumazenil. ये correct answer है। Now we'll see the next question, question number 60। देखो पूछा है contamination of which causes the giardia, contamination of which of the following cause giardia या फिर giardiasis। जियार्डिया और जियार्डियासिस कैसे होता है, इट इज अ काइंड ऑफ डायरिया, इसका एक प्रोटोजोआ होता है जियार्डिया, उसकी वजह से क्या होता है कि डायरिया हो जाता है। सो कंटेमिनेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज जियार्डिया, तो ऑप्शन ए में दिया है एयर, ऑप्शन बी केमिकल, ऑप्शन सी में दिया है फूड, ऑप्शन डी में दिया है वाटर। बेसिकली जियार्डियासिस इज कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड इन्फेक्टेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड इन्फेक्टेड वाटर। बट यहाँ पे तो दोनों भी दिए हैं ऑप्शन, सो ये थोड़ा सा उन्होंने गलत दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत दिया है। उन्होंने एक तो ऐसा ऑप्शन देना चाहिए फूड एंड वाटर, बोथ फूड एंड वाटर कंटेमिनेटेड फूड एज वेल एज वाटर, दे आर द सोर्सेज फॉर जियार्डिया, जियार्डियासिस इज कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये आंसर है उसका। एक्चुअली उन्होंने
आंसर डी दिया है सिर्फ, बोथ आर द करेक्ट आंसर। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा है देखो, which of the following liquids is not which of the following liquid is not a for internal use। सो इंटरनल यूज के लिए कौन सा लिक्विड नहीं है ऑप्शन में से, देखो ऑप्शन ए क्या दिया है, सिरप, सिरप तो इंटरनल यूज के लिए होता है बॉस। ऑप्शन बी क्या दिया है, इलिक्सिर, इलिक्सिर मतलब क्या, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, इलिक्सिर क्या होता है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है ना, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन। यही ये जो पेपर है अभी चल रहा है, इसी पेपर में एक क्वेश्चन आया था ऊपर, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन क्या होता है, इलिक्सिर। ये भी क्या है, इंटरनल यूज के लिए। देन एरोमेटिक वाटर्स, ये भी क्या है, इंटरनल यूज के लिए। व्हाट यू मीन बाय लिनीमेंट्स, तो लिनीमेंट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द लोकल एप्लीकेशन। लिनीमेंट क्या है, used for the local application। Which of the following liquid is not for internal use? So iron, okay, so liniment is not for internal use। liniment क्या है, internal use के लिए नहीं होता है। liniment क्या है, it is used for the local application for to relieve the pain, to relieve the pain and inflammation। so liniment किसके लिए यूज होता है, to relieve the pain and inflammation। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन डी। यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए आपका, ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स्ड फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट। क्या है पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स्ड, मतलब यहाँ से नहीं मिलता है, ऑप्टेन नहीं होता, नॉट सोर्स्ड फ्रॉम रूट ऑफ प्लांट मतलब क्या, ये इसमें से कौन सा रूट नहीं है। देखो पहला ऑप्शन दिया है इपिकेकुना, इपिकेकुना इज सेपेलिस इपिकेकुना, then licorice glycyrrhiza glabra, again it is a root, roots and stolons from glycyrrhiza glabra, leguminacea family। ipecacuana is also a roots from sepelis ipecacuana, sepelis acuminata। वसका क्या, राउल्फिया क्या है, राउल्फिया, राउल्फिया is also a root, it is a root obtained from राउल्फिया serpentina, राउल्फिया serpentina। ये तीनों भी क्या है, रूट है। अभी कौन सा है, एक बचा वसका, व्हाट इज वसका, इट इज नथिंग बट द लीव्स ऑब्टेन फ्रॉम आधा तोड़ा वसिका प्लांट फैमिली एकेंथेसी, इसका फैमिली होता है एकेंथेसी। सो वसका क्या है, लीव्स है, लीव्स, इट इज अ लीव्स। ये बाकी जो तीन है ना, ये क्या है, रूट्स है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज नॉट सोर्स फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट, रूट कौन सा नहीं है, तो वसका नहीं है। What will be the correct answer for this? Option C. Option C will be the answer of this question। आपने अगर क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ लिया तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, अगर आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो कहाँ से समझ में आएगा क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखो पूछा है, which of the following gives the formula for stomatal index। पूछा है stomatal index का फॉर्मूला कौन सा है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से। देखो ऑप्शन ए दिया है I इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस इंटू 100, ठीक है। ऑप्शन बी दिया है I इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय ई प्लस ई इंटू 100। ऑप्शन सी में दिया है I इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एस प्लस ई इंटू 100 एंड ऑप्शन डी में दिया है I इज इक्वल टू एस इंटू ई डिवाइडेड बाय 100। स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट नंबर ऑफ इपिडर्मल, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द नंबर ऑफ इपिडर्मल सेल, ठीक है। क्या है सिंपल उसका डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा इज नथिंग बट द ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, आपको याद रखना है, इट इज द ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन फॉर द प्लांट। सो व्हाट इज स्टोमेटल नंबर, नंबर ऑफ स्टोमेटा टू द नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्टोमेटा डिवाइडेड बाय एपिडर्मल सेल। तो एस डिवाइडेड बाय ई कहाँ देखना, देखो एस डिवाइडेड बाय ई, दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में क्या है, एस डिवाइडेड बाय ई है, ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है एस डिवाइडेड बाय ई। आपको यहाँ पे फिर पूरा फार्मूला होना चाहिए। व्हाट इज द फार्मूला, स्टोमेटल इंडेक्स आई इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस, एस डिवाइडेड बाय ई प्लस एस इंटू 100, तो क्या है 100। दिस इज द फार्मूला फॉर स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स का ये फार्मूला है। कौन सा मैच हो रहा है, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट मैच। एस क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा पर मिलीमीटर स्क्वायर एंड ई क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी एपिडर्मल सेल पर स्क्वायर मिलीमीटर, ओके। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट द क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए।
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मूला स्टोमेटल इंडेक्स का। कौन सा फॉर्मूला है वो स्टोमेटल इंडेक्स का, इट इज आई इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय ई प्लस एस इंटू 100। ये होता है फॉर्मूला आपका स्टोमेटल इंडेक्स का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स नेसेसिटी ऑफ द डिसीज कंट्रोल मेजर। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द नेसेसिटी ऑफ डिसीज कंट्रोल मेजर। देखो ऑप्शन ए क्या है, टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ड्रग इन मार्केट। ऑप्शन बी दिया है नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ऑप्शन सी दिया है टू अवॉइड द फाइनेंस बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम लेटर ऑन। एंड ऑप्शन डी दिया है टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन। तो क्वेश्चन समझ लो पहले क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स नेसेसिटी फॉर डिसीज कंट्रोल मेजर। डिसीज कंट्रोल मेजर के लिए, डिसीज कंट्रोल मेजर का, ठीक है, डिसीज कंट्रोल मेजर का नेसेसिटी कौन देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स नेसेसिटी ऑफ डिसीज कंट्रोल मेजर, टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ड्रग इन द मार्केट, नहीं ये तो ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ द, ये भी नहीं। टू अवॉइड द फाइनेंस बर्डन, टू अवॉइड द फाइनेंस बर्डन और हेल्थ केयर सिस्टम। अगर आपने डिसीज कंट्रोल मेजर लिए नहीं, क्या होगा, अगर कोई मेजर ही नहीं है, जैसे कोरोना वायरस का क्राइसिस आया था, कोरोना वायरस में कोई डिसीज कंट्रोल का मेजर नहीं था, पहले मालूम ही नहीं था, क्या हो गया, वो पूरा इंडिया में फैल गया और बाद में क्या हुआ, किल्लत हो गया, फाइनेंशियल बर्डन आ गया हेल्थ केयर सिस्टम पे। Which of the following option gives necessity to the disease control measure? So option C, to avoid the finance burden on the healthcare system. To avoid the finance burden on healthcare system. So this is the correct option for this answer. Correct answer क्या है, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखो मैं मार्क कर लेता हूँ आपको करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो आंसर की दिया है उन्होंने नहीं दिया है, ये मैं मेरे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। नाउ चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो नॉट पूछा है, मैंने पहले ही बोला है आपको क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड्स लाइक नॉट, इवन, अपसेंट, ऑड। अगर ऑड, इवन, नॉट ये वर्ड है तो ये क्या करते हैं, सारा पूरा आंसर ही चेंज कर दिया, ठीक है। सो नॉट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट में क्या आता है, सोडियम। सोडियम इज अ मेजर, सोडियम जो होता है ये नहीं, एन ए, तो ये सोडियम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट होता है मेजरली। क्लोराइड क्या होता है, ये भी क्या है, मेजरली एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, ये कार्बोनेट भी एक्स्ट्रा सेलुलर। मैग्नीशियम दोनों में होता है, इंटरसेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर। बट मैग्नीशियम क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत ही कम होता है, मैग्नीशियम एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत ही कम होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब क्या, आउटसाइड द सेल, ठीक है। इंटरसेलुलर मतलब क्या, इनसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल मतलब इन, आउटसाइड द सेल मतलब ब्लड, ब्लड भी बोल सकते हो। सो ब्लड फ्लूइड, ब्लड और प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, so in that sodium is the major, so that's why sodium is known as a extracellular cation, extracellular cation। देखो सोडियम, ये तो इसमें से बहुत सारे जो सोडियम भी इनसाइड द सेल होता है, क्लोराइड भी होता है, ये कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बट सोडियम आउटसाइड ज्यादा क्वांटिटी में होता है, ज्यादा मोल्स आउटसाइड होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन। क्लोराइड भी ज्यादा आउटसाइड होता है, ये भी होता है। मैग्नीशियम बहुत ही कम मात्रा में आउटसाइड होता है, तो इनसाइड ज्यादा मात्रा में होता है। ओके, नाउ इनसाइड क्या है, यही होंगे, लेकिन मैग्नीशियम इज present in the higher amount in this cell. Sodium is known as a extracellular cation, and chloride is also there in a extracellular, also there is a intracellular। ये सभी इंटरसेलुलर भी है, एक्स्ट्रासेलुलर भी, बट ज्यादा कौन है, सोडियम, क्लोराइड, देन सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, ये बाइकार्बोनेट, ये सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर में होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में, और ये मैग्नीशियम ज्यादा क्वांटिटी में इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे ही क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन, क्या था, which of the following is not a intracellular electrolyte। कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी, मैग्नीशियम इज नॉट अ इन, ओके, मैग्नीशियम इज नॉट अ एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, मैग्नीशियम इज इंट्रासेलुलर कैटायन, मैग्नीशियम क्या है, ज्यादा इंटरसेलुलर होता है। यहाँ पे पोटेशियम भी अगर पूछा होता तो पोटेशियम आंसर भी हो जाता। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 66, देखो पूछा है क्वेश्चन नंबर 66, देखो क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 66, which, okay, what is the name of process for bone formation, okay, what is the name of process of bone formation।
जो हड्डी बनता है उसका प्रोसेस क्या है? नेम द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए में दिया है सेल डिवीजन, तो इसका क्या संबंध है? माइटोसिस ये सेल डिवीजन का ही टाइप होता है, ठीक है, इसमें नहीं। नॉन ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये तो नहीं है। लास्ट ऑप्शन जो है ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन मतलब क्या है? ओस्टियोसाइट्स। ऑसिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोसाइट्स। तो ओस्टियोसाइट इज अ सेल ऑफ बोन। बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस कौन सा होता है? ऑसिफिकेशन। So ossification is the bone formation process. Remember, ossification is the bone formation process. यहाँ पे कौन सा आंसर होना चाहिए आपका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 देखो पूछा है, which of the following drug reduces the blood pressure primarily by directly decreasing the heart rate alone? क्वेश्चन क्या पूछा है उसको समझ लो पहले। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में। फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, मतलब ये सभी ड्रग जो है ब्लड प्रेशर कम करने वाली थी, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर प्राइमरली प्राइमरली बाय डायरेक्टली डिक्रीजिंग द हार्ट रेट अलोन। हार्ट रेट डिक्रीज कौन कर रहा है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कौन कम करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहला। व्हाट इज ऑप्शन डी? अल्फा मिथाइल डोपा। ये क्या करता है? अल्फा मिथाइल डोपा, व्हाट इज द मैकेनिज्म? इट इज अ ड्रग यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। इट इज नोन एज सेंट्रल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। ये क्या करता है? इट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। इट विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। ओके, तो ये सिंपैथेटिक ड्राइव जो है उसको कम करेगा। इट विल डिक्रीज द सिंपैथेटिक ड्राइव अल्फा मिथाइल डोपा। देन ऑप्शन सी में दिया है प्राजोसिन। प्राजोसिन क्या है? इट इज नोन एज अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 ब्लॉकर। अल्फा 1 रिसेप्टर का आप होता है एड्रिनर्जिक अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में होता है, तो ये ब्लॉक करेगा तो क्या करेगा? सो इट विल डायलेट द ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, तो इसको हार्ट रेट का कोई संबंध नहीं। इट विल डिक्रीज द प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, ऑप्शन बी क्या दिया है? सोडियम नाइट्रोपोसाइड। सोडियम नाइट्रोपोसाइड क्या है? सोडियम नाइट्रोपोसाइड इट इज अ डायलेटर, वैसोडायलेटर। ये क्या करता है? सोडियम नाइट्रोपोसाइड वेन जो होते हैं आपके ब्लड वेसल्स उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये नोट, नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इट रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड इट विल डायलेट द ब्लड सेल। ये भी ब्लड वेसल को डायलेट करता है। सो इट विल आल्सो डिक्रीज द प्री लोड एंड आफ्टर लोड। तो ये भी हार्ट रेट का कोई संबंध नहीं। अभी आते हैं ऑप्शन ए के ऊपर, प्रोप्रेनालॉल। ये प्रोप्रेनालॉल क्या है? इट इज नोन एज अ बीटा ब्लॉकर। ये क्या है? बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बीटा ब्लॉकर। इट इज अ बीटा 1 blocker. It is a non-selective beta blocker. The beta receptor कहाँ पे होता है? Beta adrenergic receptor is present in the myocardium of heart, and okay, stimulation of beta 1 receptor increases the heart rate and increases the force of contraction. Blocking of this beta 1 receptor decreases the heart rate and decreases the force of contraction. तो अभी देखो ये भी क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। सो इट ब्लॉक्स द बीटा 1 receptor of heart and decreases the heart rate and force of contraction and decreases the blood pressure. So answer for this question should be option A. तो देखो ऑप्शन A जो है ना प्रोप्रानोल, okay, so that is a beta blocker and it will decrease the blood pressure by blocking the beta 1 receptor of heart will decrease the heart rate and blood pressure, right? So you have to clear. Now चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट कौन सा है? देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन रेगुलेट्स द सोडियम लेवल इन द बॉडी। बॉडी में आपके सोडियम लेवल को कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, पहले ऑप्शन देख लेते क्या है। ऑप्शन ए में दिया है किडनी, ऑप्शन बी में दिया है हार्ट, ऑप्शन सी में दिया है ब्रेन, ऑप्शन डी में दिया है लीवर। ठीक है, तो देखो लीवर का काम क्या है? मेटाबॉलिज्म। लीवर इज नोन एज अ मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ बॉडी। लीवर क्या है? मेटाबॉलिक फैक्ट्री ऑफ बॉडी। इसका काम है मेटाबॉलिज्म, इसका काम है मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन इंटरमीडिएट, प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड। ठीक है, बाइल एसिड लीवर में बनता है।
याद रखो बाइल एसिड लीवर में बनता है, स्टोर होता है आपके गॉल ब्लैडर में, ठीक है। ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन इज अ सेंट्रल, ओके, ब्रेन इज अ सेंट्रल, इट विल कंट्रोल ऑल द सिस्टम। ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है सबको। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम होता है टू पंप द ब्लड्स, टू पंप द ब्लड। किडनी का काम क्या होता है? टू फिल्टर द ब्लड, टू फिल्टर द ब्लड। ठीक है, आपको पूरा फिजियोलॉजी मालूम नहीं फिर भी आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो। रेगुलेट द सोडियम लेवल इन द बॉडी, देखो फिल्टर कर रहा है ब्लड को, मतलब आयंस भी फिल्टर कर रहा है, इनऑर्गेनिक आयंस, ओके, देन सभी सभी चीज फिल्टर कर रहा है किडनी। सो रिमेंबर, किडनी विल रेगुलेट द सोडियम लेवल इन द बॉडी। हु रेगुलेट्स द सोडियम लेवल इन द बॉडी? किडनी। किडनी क्या करता है? सोडियम, सोडियम जो है ना, देखो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सोडियम, सोडियम और वाटर, सोडियम जो होता है और वाटर जो होता है उसमें क्या है? उसमें अपेयर है, अपेयर, एक दूसरे के लिए है। सोडियम एंड वाटर दे आर एक दूसरे के लिए, मतलब सोडियम के बजाय वाटर जिंदा नहीं रह सकता, वाटर के बजाय सोडियम जिंदा नहीं रह सकता, मतलब ये इनमें अपेयर चल रहा है और इनको जो कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो वैसे ही देखो, जैसे किडनी में जब सोडियम का एक्सक्रीशन होगा, किडनी में जब सोडियम का एक्सक्रीशन होगा तो वाटर का भी एक्सक्रीशन होगा, और किडनी में जब सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन होगा तो वाटर का भी रीअब्सॉर्प्शन होगा। सो किडनी विल रेगुलेट द सोडियम एंड वाटर लेवल इन द बॉडी। आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो which of the following organ regulates the sodium level in the body? Kidney will regulate the sodium level in the body। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन था? 69। क्वेश्चन नंबर 69, चलो देखो पूछा है, क्या पूछा है बॉस? क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है, which of the following solid dosage form, क्या है? solid dosage form of medicament which are meant for slow dissolution। देखो पूछा है कि नीचे दिए गए में से सॉलिड डोसेज फॉर्म कौन सा है जो स्लो डिसोल्यूशन के लिए बना है, स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग दो सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट व्हिच आर मेंट फॉर स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ। तो स्लो डिसोल्यूशन माउथ में करने के लिए क्या यूज है? पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी में दिया है पेसरीज। पेसरीज मतलब क्या? दे आर द type of suppositories, they are the type of suppository when they are used for for the vagina, they are known as a pessaries, ठीक है, for their local effect as okay, for their local antibacterial effect, ठीक है, pessaries। tinctures क्या है? tinctures are mathematical solutions used for internally, used internally, okay। ये तो लिक्विड होता है, ये पेसरीज सेमी सॉलिड होता है, ठीक है, ये लिक्विड है। टिंचर्स, पेसरीज क्या है? सेमी सॉलिड है। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी सपोजिटरी। सपोजिटरी मतलब क्या? इट इज अगेन सेमी सॉलिड प्रिपरेशन व्हिच आर मेंट टू प्लेस इन द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में जैसे रेक्टल सपोजिटरी होता है, वजाइनल सपोजिटरी होता है, ये एयर कोन्स होता है, डेंटल कोन्स। ऑप्शन ए क्या दिया है? लोजेंजेस। ऑप्शन ए दिया है लोजेंजेस। लोजेंजेस मतलब क्या? It is a candy-like preparation which are meant to dissolve slowly in the mouth. Lozenges they are particularly used for sore throat। अगर आपका गला खराब है तो आप क्या करते हो? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, है ना? विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। और एक आता है स्टेप्सिल, स्टेप्सिल, और एक आता है कप्सिल्स। What are they? They are nothing but the lozenges। तो विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो मतलब क्या है? गले का खराश जो है वो कम करो। क्या लो? विक्स गोली। गोली मतलब उसमें शुगर भी होगा और मेडिकामेंट भी होंगे। सो लोजेंजेस, लोजेंजेस आर द सॉलिड डोसेज फॉर्म मेडिकामेंट, सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट मीन फॉर द स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ। ठीक है, क्लियर? तो क्लियर होना चाहिए आपको। आपको डेफिनेशन अगर पता है तो इतना हो जाएगा। इतना इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करवाऊँ मैं, एक्चुअली इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, बट स्टिल है टाइम तो ले दे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? 70। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मीनिंग ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। देखो क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से किसका मीनिंग है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन कौन कौन दर्शाता है? नीचे दिए। तो ऑप्शन ए में क्या है? देखो, रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस। हार्ट बीट का
हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या दर्शाएगा, एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं, वो दर्शाएगा हाइपरटेंशन या फिर टैकीकार्डिया। तो इंक्रीज इन द हार्ट रेट नोन एज अ टैकीकार्डिया, वो टैकीकार्डिया दर्शाएगा। यहाँ पे इम्यूनाइजेशन का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया है इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या हो सकता है, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन इडिमा। तो हाइपरटेंशन इडिमा का क्या संबंध है कुछ इम्यूनाइजेशन में। ऑप्शन सी में ऑप्शन सी में दिया है इंक्रीज इन द रेट ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, आपका वेट बढ़ जाएगा। इसका इम्यूनाइजेशन से क्या संबंध है, नहीं। चलिए लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी, डेवलपमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंस आफ्टर द डिसीज। इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ ना कुछ इम्यूनिटी का टर्म आ जाएगा आपको। अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होके गया तो उसका मतलब होता है आपकी बॉडी में उसके एंटीबॉडीज बन चुकी है, और जब नेक्स्ट टाइम आपको होगा इन्फेक्शन तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हो गया, मतलब योर बॉडी सेल हैज ऑलरेडी एंटीबॉडीज एंड दैट एंटीबॉडी विल फाइट फॉर यू अगेंस्ट द कोरोना। So development of more resistance after the disease is known as a immunization. So meaning of active immunization. So this option, what's option? Option D. Option D will give you what will give the meaning of immunization. Option D will give you meaning of immunization. चलो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखो बहुत ही सिंपल। क्या पूछा है, which type of tissue blood is, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है ऐसा पूछा है। क्वेश्चन ए क्या दिया है, कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन बी दिया है एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन सी दिया है नर्वस टिश्यू। ऑप्शन डी दिया है एडिपोज टिश्यू। चलो एडिपोज टिश्यू मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, लिपिड्स, इसमें फैट स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, स्टोर होते हैं फैट। आप जो ठूस ठूस के खाते हो ना, जितना बॉडी को लगता है बॉडी उतना लेगी कार्बोहाइड्रेट, जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो ठूस ठूस के, वो कहाँ पे जाएगा, उससे बनेगा फैटी एसिड्स, वो उसका डिपोजिशन होगा एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू ये तो कौन सा टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है। नर्वस टिश्यू का है, नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है, जैसे ब्रेन, सेरेबेलम, नर्व्स, वो नर्व टिश्यू का है, इट इज अ परमानेंट टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ी है, ठीक है। देन एपिथेलियल टिश्यू, ये एपिथेलियल सेल्स जो बना है उससे बनता है एपिथेलियल टिश्यू। ऑप्शन ए में दिया है कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है, रिमेंबर ब्लड इज नोन एज अ blood blood is known as a fluid connective tissue. Blood is known as a fluid connective fluid connective tissue which circulates around the body, to different organs. It allows the communication between different organs placed at a distance. ठीक है, आपका पैर का अंगूठा जो है वो नीचे है, आपका ब्रेन कहाँ पे, सिर में है, लेकिन आपको बोला आपका अंगूठा ऊपर नीचे करो, आप इजीली कर देते हो। सो ब्लड सर्कुलेट है, इट अलाउज द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंटली प्लेस्ड ऑर्गन। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ऑप्शन का आंसर क्या होना, ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा है, देखो पूछा ये क्या है, वो कुछ भी पूछते हैं। तो अभी क्या पूछा है, स्टेफिलोकोकस इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग। तो स्टेफिलोकोकस का इन्फेक्शन कैसे होता है, स्टेफिलोकोकस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेफिलोकोकस इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए में दिया है ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन में दिए बी में दिया है सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑप्शन सी में दिया है ओरल ट्रांसमिशन, ऑप्शन डी में दिया है टच। देखो टच से स्टेफिलोकोकस का इन्फेक्शन होता है क्या, नहीं होता है। स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जो है इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय टच, नॉट ट्रांसमिटेड बाय ओरल ट्रांसमिशन, नॉट ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट हो भी सकता है बट नहीं होता है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मेजर इसका इन्फेक्शन क्यों होता है, ड्यू टू ड्रॉपलेट्स। सो स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट्स। ये क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है ना। ड्रॉपलेट क्या होता है, आई विल एक्सप्लेन। स्टेफिलोकोकस ऑरिस इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट मतलब क्या, आप जब खांसते हो या फिर आप स्पिटिंग करते हो, थूक देते हो, या फिर खांसी आ गई आपको, तो उसमें क्या आता है कि एक स्मॉल आपका जो सिक्रेशंस होता है वो ड्रॉपलेट सिक्रेशन होता है। वो स्मॉल ड्रॉपलेट आपको आंखों से दिखती भी नहीं, लेकिन वो आप जब खांसते हो तो आ जाता है वो, सो दैट इज अ ड्रॉपलेट्स।
So Staphylococcus is caused by droplet infection. यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73. 73 क्वेश्चन है, देखो. Which of the following is a posology related to? Which of the following posology is related to? तो पोसोलॉजी किसके संबंधित है? पोसोलॉजी मतलब क्या? इट इज अ पोसोलॉजी मीन्स इट इज अ साइंस और इट इज अ science of dose. It is science of dose or it is a study of dose of drug. Study of dose of drug is a posology. So ठीक है, dose of drug, तो उसमें आपको समझ में आएगा, आ गया होगा. तो क्या होना चाहिए आंसर? पोसोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ डोज ऑफ ड्रग. डोज ऑफ ड्रग मतलब क्या? ऑप्शन में देखो क्या क्या ऑप्शन. चलो ऑप्शन ए दिया है क्वालिटी ऑफ ड्रग, ऑप्शन बी दिया है सोर्स ऑफ ड्रग, ऑप्शन सी दिया है कंपोजिशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन डी दिया है क्वांटिटी ऑफ ड्रग. पोसोलॉजी क्या है बस? पोसोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डोज ऑफ ड्रग. डोज मतलब क्या? डोज कितना होता है? जैसे होता है पैरासिटामोल का 250 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम. ये क्या है? क्वांटिटी है. क्या है? क्वांटिटी. पोसोलॉजी इज रिलेटेड विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग, नॉट अ क्वालिटी ऑफ ड्रग. क्वांटिटी ऑफ ड्रग. तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्वांटिटी ऑफ ड्रग. सो दीज वेर द क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे सेशन. आज के इस यूट्यूब वीडियो में इतने से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. बाकी जो 30 क्वेश्चंस बचे आपके, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे. और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड बेल आइकन जो है उसको प्रेस करो ताकि ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. थैंक यू. Hello students, order the magic bullet for GPAT Sniper Drug Inspector. Read twice and qualify 100